معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے سارے جہاں پر چھا گیا ابر کرم ہے، اب آیا رجب ماہ رجب پھر آ گیا رجب۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں آمد ہوتی ہے، اور مدنی مذاکرہ کے بغیر تو زندگی میری ادھوری ہے۔ حکمت والے جواب ملتے ہیں۔ پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عرس کیا ہوتا ہے، خواجہ غریب نواز غوث پاک کی 11ویں، بس امیر سنت کی محبت یہاں پر کھینچ لائی ہے، اور یہاں پر آنے کے بعد جب امیر سنت کا دیدار کیا ہے تو دل کی کیفیت ہی چینج ہو گئی ہے۔ ہم نے جب قریب سے دیدار کیا تو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ آج دن تک ایسی خوشی کبھی ہم ملی نہیں ہے، کبھی کسی بات سے ہمیں یہ خوشی نہیں ملی جو یہاں آ کے ملی ہے۔ جو سامنے بیٹھ کے مرشد کو دیکھنا، مرشد دا دیدار باہو میں لکھ کروڑا حجا ہو، تو ان کو دیکھ کے ایسا لگا کہ بس ان کو دیکھتے ہی جاؤ، ایسا پیارا انداز، ایسی گفتگو کمال کی کہ بس میں تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی نورانی شخصیت ہے کہ بس دل کرتا تھا جا کے لپٹ جائیں امیر سنت کے گلے لگ جائیں۔ اور رہی علم کی بات، اس میں ہر طرح کا سوال ہوتا ہے، تو ہمارے ذہن میں جو چیز ہوتی ہے وہ ہر طرح کی ہمیں مل جاتی ہے یہاں آنے کے بعد۔ ویسے ہم مدنی مذاکرہ دیکھتے تو رہتے ہیں گھروں میں ویسے، لیکن یہاں دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے، یہاں سے اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا جب تک مدنی مذاکرہ ختم نہ ہو جائے۔ اگر امیر اہل سنت ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں اتنا خواجہ صاحب کے بارے میں نہیں پتا تھا، مگر ان کی زندگی کے بارے میں خواجہ صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کیسے عبادتیں کری، کیسے وقت گزارا، کیسے لوگوں کی خاطر جو نا جی دین کی کوششیں کری، جو آج ہمارا دین پھیلا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اور دعوت اسلامی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنی کوششیں کر رہے ہیں، اتنے سب کچھ کہ گھر گھر یہ سارے پیغام پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت پیارا انداز ہے، بالکل آسان الفاظ میں لوگوں کی سمجھ کے مطابق الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک علم دین آسان طریقے سے پہنچ جائے۔ یہ ایسا پیارا انداز ہے کہ ہر بندے کی، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، سادہ مزاج بندہ ہو، ہر کسی کے سمجھ میں آنے والا انداز ہے، اور بہت پیارا انداز ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ادھر آ کے ادھر لوگوں کے ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے ماشاءاللہ بہت متاثر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ بڑے ہی پیار سے، اخلاق سے، محبت سے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس بات پہ ایسے عمل کریں۔ جیسے انہوں نے اسلامی بھائیوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ ماشاءاللہ اتنے اخلاق سے بولتے ہیں کہ ان کو منع کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ وہ آگے کہتے ہیں جی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے اسلامی بھائی مدینہ اٹھے، ماشاءاللہ اس نام سے پکارتے ہیں، اگلے کا جواب دینے کا، انکار کرنے کا جواز نہیں بنتا ہے۔ بڑے اچھے کام ہے ماشاءاللہ سے دعوت اسلامی کے، یہاں پہ کھانے پینے کا انتظام، سیکیورٹی کا بڑا اچھا ہے، عوام کو بہت اچھے سے وہ سنبھالتے ہیں، اور عوام کی بڑی خدمت کرتے ہیں دعوت اسلامی والے ماشاءاللہ سے۔ پہلی دفعہ ماشاءاللہ میرے اہل سنت سے متاثر ہو کے میرا ذہن بنا، تو جب آئے تھے تو کلین شیف تھے، تو جب ادھر سے گئے تو ماشاءاللہ سنت رسولدار چہرے پہ لے کے سر پہ معاملہ لے گئے۔ میں بحرین میں ہوتا ہوں، تو بحرین سے میں اسپیشل حضرت صاحب سے ملاقات کے لیے آیا۔ کیوں اتنی محبت حضرت صاحب سے؟ جی الحمدللہ حضرت صاحب کا اخلاق، ان کی جو معاملات ہیں، دعوت اسلامی کا کام، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان کے صدقے عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہم لوگ دعوت اسلامی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ دوبارہ پہلے قرآن نہیں تھا سیکھا، فضان اکیڈمی سے آن لائن قرآن سیکھا، الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوا۔ وہ استاد جو ہیں وہ الحمدللہ بڑے زبردست ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ دعوت اسلامی جو دے رہی ہے نا، وہ لوگوں کو سیدھا جنت کا راستہ دے رہی ہے۔ آج ہم عہد کر کے جا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہر مہینے جو ہے نا وہ 3 دن کا مدنی قافلہ جو ہے وہ کریں گے، اور مدنی کاموں کی خوب سیالکوٹ میں اور زیادہ دھومیں مچائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف
जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, एहतिकाफ की नीयत जरूर फरमाएं। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं, दिल ही में नीयत कर लीजिए। मैंने सुन्नत एहतिकाफ की नीयत की। नीयत से जब तक मस्जिद में रहेंगे एहतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल एहतिकाफ की खत्म हो जाएगा। याद रखिए, मस्जिद के अंदर खाना पीना, सोना, साहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ, नदम किया हुआ पानी पीना, न्यास खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं। जबकि एहतिकाफ की नीयत की थी, नियत नहीं की थी, इफ्तार का टाइम हो गया, इफ्तार करना चाहते हैं, नियत कर लीजिए। अब बेशक इफ्तार कर लीजिए। अलबत्ता ये कि खाने पीने के लिए नियत करेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा। सवाब के लिए नियत करें, मुनासिब तरीका यही है कि अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब के लिए एहतिकाफ की नियत करें और कुछ ज़िक्र व दुरूद कर लें, मकरू वक्त नहीं, 2 नफल पढ़ लें या वक्त की नमाज पढ़ लें, या कुछ तिलावत कर लें या 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब चाहे तो खाएं पिए सोएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 1444 हिजरी के रजब शरीफ की चौथी शब की मुनासबत से ज़ियाद दुरूद सलाम पेज नंबर 2 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 4। मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पड़े या ज्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज रजब शरीफ की चौथी शब है, तो वो रमज़ान शरीफ की याद इसमें यूं आई मुझे कि वो हमारे यहाँ बड़े बूढ़े मेमनों में ये कहते हैं, रजब जी चौथी ने रमज़ान जी पहली। यानी जिस दिन रजब शरीफ की चौथी तारीख होती है, अब वो जैसे कि जुम्मे को चौथी तारीख है, तो ये बड़े बूढ़ों के हिसाब से, वो बड़ी बूढ़ियाँ बल्कि इनके हिसाब से पहला रोज़ा जुम्मे का होना है। ये इनका वैसे ये इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। शरई तौर पर इन इस्लामी कानून यही है कि चांद नजर आए, यानी इसका सबूत मिले, रुयत हिलाल, इन्हें चांद देखने का सबूत मिले, जो भी शरई तकाज़े हैं उसके मुताबिक चांद का सबूत मिले तो रमज़ान शुरू होगा। अब हो सकता है जुम्मे ही को हो जाए। बड़ी बूढ़ियों की बातें बाद में तजर्बे की होती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का आगाज हो चुका। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ, ये जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश करूंगा। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमा। मुझे आयशाएं करता अपने कहे पर बिला वजह जिद करता नहीं, बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। আসসালামু আলাইকুম। আমি রাসূলুল্লাহর কাছে জানা ছিল শহীদ হযরত খাজা মাইনুদ্দিন চিশতির ওরস মোবারক উপলক্ষে পাড়া মহল্লা ডেকে লাল শালু বেঁধে টাকা পয়সা তোলা হয় এবং সিন্নি করা হয়। এই কাজকে ইসলাম কতটুকু মূল্যায়ন করে? ये बंगला भाषा में शायद सवाल था, बंगला भाषा में सवाल था। 6 रजब को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ के सिलसिले में महल्लेदारों को बुलाकर लाल चादर के साथ चंदा वगैरह जमा करके शीरनी वगैरह का एहतमाम किया जाता है। इसकी इस्लाम में कहाँ तक इजाजत है? इसमें ऐसा है कि अगर ऐसा किया जाता है तो लाल चादर क्यों? लाल चादर फिरा करी चंदा लेते होंगे, तो अगर चंदे का हमेशा उसूल ये याद रखिए कि इसमें किसी से जबरदस्ती चंदा नहीं लेना।
ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا سنا جاتا ہے کہ بعض مطلب وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، وہ بھی اس طرح کے کام کر کے چندہ لے رہے ہوتے ہیں لوگوں پر، روب سے، لوگ ان کے روب سے، ان کے خوف سے، ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ گالیاں وغیرہ دے گا یا برا بلا کہے گا، لوگوں کے سامنے ڈیگریڈ کرے گا، تو اس لیے اس کو دے کے ٹال دیتے، تو یہ رشوت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی خوش دلی کے ساتھ چادر ٹھیک ہے پھرا رہے ہیں، تو پتہ ہے سب کو کہ خواجہ غریب نواز کی نیاز کے لیے چندہ کر رہے ہیں، تو وہ جائز ہے، جو اپنی خوشی سے ڈالنا چاہے ڈال دے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر یہ لال چادر کی قید ہٹا دی جائے، لال چادر کی ضرورت، کوئی سی بھی چادر نہ ہو، صندوق باکس ہو، کچھ بھی ہاتھ سے لے لیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی سی بھی چادر ہو۔ اگر لال کو فرض و واجب نہیں سمجھتے، کمپلسری نہیں سمجھتے، تو ویسے ہی لال چادر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کی نیاز بالکل جائز ہے، بلکہ کار ثواب۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بات کرتے وقت ہماری اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ، سلام کرتے وقت بھی اس طرح کہتے ہیں کہ السلام علیکم، سلام سلام، اور یہ اس طرح کہنا کیسا کہ السلام علیکم، السلام علیکم کہنے سے کیا سلام کا جواب واجب ہو جاتا ہے؟ اللہ اللہ، اس کی طرف تو پتہ نہیں کسی نے کبھی توجہ دلائی ہوئی ہے، نہیں، میں برسوں سے دلا رہا ہوں الحمدللہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ کئی ایک کی اس میں اصلاح بھی ہو گئی ہوگی۔ یہ ایک سمجھو ایسا مرض ہے کہ شاید 100% احتیاطاً نہیں کہتا، ورنہ اتنا مطلب ویسے کبھی تسلی سے کہیں گے تو صحیح کہیں گے، جیسے مائک پر قاری صاحب پڑھیں گے تو بس ہٹ جاؤ، سمجھے، ویسا پڑھیں گے کہ طبیعت خوش ہو جائے، اور جب یہ نماز میں قراءت کریں گے بلند آواز سے، جہری قراءت، تب بھی مطلب یوں مزہ آئے گا۔ جب یہ ظہور یا اپنی اکیلی پڑھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات بعضوں کی اسپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ یہ بھی دیکھا کرو۔ خیر حدر میں جلدی تو پڑھا جاتا ہے، لیکن حروف چبا جائیں اس کی تو اجازت نہیں ہے نا، مدات ہے اس کا خیال رکھنا بھی لازم ہے، قاریوں کے نزدیک جو واجب ہے نا مدات، تو ان کا لحاظ رکھنا، تو یہ جو مقرر کی حد قاریوں نے اس کی بھی رعایت کرنی ہے، اور جو بھی یعنی کہ تجوید کے قواعد ہیں ان کا لحاظ تو رکھنا ہوا۔ حدر بولتے ہیں اس کو جو جلدی پڑھتے ہیں، لیکن ایسی جلدی نہیں جیسے بعض جگہ تراویح میں یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کی طرح پڑھتے ہیں، تو یہ نئی طریقہ ٹھیک، اور کئی جگہ معنی اس میں فاسد ہو جاتے ہیں، فاسد کیا بلکہ وہ تلاوت ہی نہیں ہوتی، وہ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ جیسے اور ہی ہو رہا ہے کچھ، تو تلاوت ایک آیت پڑھے، پورا قرآن نہ پڑھے، صرف ایک آیت پڑھے، مگر اس کے قواعد کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، جیسا کہ وہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اس طرح پڑھے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ پورا قرآن اگر غلط پڑھ رہے یا علمون تعلمون تو یہ گلے پڑ جائے گا معاملہ سارا، اور بہت مشکل ہو سکتی ہے، ثواب تو دور کی بات، بہت خطرناک ہے، بعض اوقات ایمان کے بھی مسئلے ہو سکتے ہیں اس میں، اس طرح مطلب پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ قرآن پڑھے تو قرآن کے حکم کے مطابق پڑھیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو جہاں جہاں اس کے ٹھہرنے کے مقامات سب بہت آسان ہم کو کر دیا گیا ہے، پہلے کے دور میں اس طرح نہیں ہوتا تھا، زیر زبر بھی نہیں ہوتے تھے، یہ بھی بعد میں لگے۔ تو الحمدللہ اتنا آسان و خوبصورت چھپائی میں پھر بھی صحیح نہیں پڑھتے۔ اسی طرح بارہا الحمدللہ، سبحان اللہ کہنے کی نوبت آتی ہے، ماشاء اللہ کہنے کی نوبت آتی ہے، السلام علیکم کہنے کا موقع ملتا ہے، لیکن واقعی اس کا بھی درست نہیں ہوتا، کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح نہیں پڑھتے، اس طرح کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو سائل نے کہا تو یہ بالکل درست کہا انہوں نے کہ ایسا ہو رہا ہے،
जो भी कर रहे हैं उनको उसकी इस्लाह करनी चाहिए। और अगर अस्सलाम अलैकुम कहा, मीम को साकिन पढ़ा, तो इसका जवाब वाजिब नहीं होगा। तो अस्सलामु अलैकुम मीम पर पेश पढ़ना होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लाहौर से माजिद मुगल बोल रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत साहब से बात करनी थी मैंने। सर मेरा सवाल ये है, मैं पहले भी एक मरतबा मैंने फोन किया था, जिनसे मैं नेकी करता हूँ मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। इस सिलसिले में मैंने बात करनी थी। मैंने ये दो लोगों ने पैसे लिए हैं, आप पैसे नहीं देते हैं, नेकी की है मैंने, वो लड़ते हैं मेरे साथ, बस आंखें दिखाते हैं। तो मैं ये पूछना था इसका क्या हल है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? अल्लाह करीम आपकी मुश्किल हल फरमाए और जो भी आपके हक दबे हुए हैं अल्लाह करे वो भर जाएं और निकल आए, आपको मिल जाए। और जो लड़ते हैं अल्लाह करे वो आपसे ना लड़े। ये तो मैंने अर्ज किया जो आपका सवाल का जवाब। अब इसमें जनरल बात कर रहा हूँ कि बाजू का जो लोग लड़ते हैं ना, तो इसमें जिससे लड़ते हैं उसका भी कभी कसूर होता है। कि ये कि बचपन से हमने सुन रखा है ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। पैसे दबा लेते हैं, तंग। मैंने भी कारोबार किए हैं, सप्लाई ये वो, तो मेरे भी पैसे लोग खा गए, मैं सबको माफ कर दिया। बेकार है यार, बेचारे अब तो पता नहीं कहीं तो मर फिट गए होंगे, बल्कि तकरीबन मर फिट गए होंगे। तो अब क्या यार रख कर करना है कि हम क़यामत में नेकियां लेंगे। क़यामत में अल्लाह की रहमत पर ना हम नजर रखें कि हम नेकियों से ही बख्शे जाएंगे। अल्लाह की रहमत होगी तो ही बख्शे जाएंगे ना। हमारी नेकियां बस कैसी नेकियां होती हैं, हमारी नमाजें कैसी होती हैं, हर एक समझ सकता है अगर गौर करे तो। अब कितना आता है अपने को, खुलूस कितना है, तवज्जो कितनी रहती है, खुशू और खुजू कहाँ से लाएंगे, तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। यानी कि ध्यान दिल लगना नमाजों में कहाँ है। नमाजों में दिल लगता तो मस्जिद के अंदर आकर हम अज़ानें सुनते। हम तो वो जब भी आते हैं मस्जिद में रहते हुए भी जमातें निकल जाती हैं, रकातें निकल जाती हैं। पहली सफ की कितनी सोच है हमारी, नेकियां ही कमानी हो तो बहुत मौके हैं जो इतनी दूर दूर से माशाअल्लाह तशरीफ लाए। तो कितना ये मतलब कौन कितनी नेकियां यहाँ आकर भी वो इकट्ठी कर रहा है। वो हर एक अपना अपना यानी कि अमल का जायजा ले सकता है, एहतिसाब कर सकता है। लेकिन ये क्या दुनिया देखी वाली है। तो बहरहाल तो इसलिए वो अपने तौर पर गौर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा अंदाज गुफ्तगू अगले को मतलब नहीं चोट करता है, यानी उसको मतलब यानी कि तकलीफ पहुंचाता है जिससे वो फिर बिफरता है। तो ये इस तरह भी होता है। अगर खुद कुफले मदीना वाला हो ना, कम गो हो, मुस्कुराने वाला हो, लड़ने वाला ना हो, चिड़चिड़ापन ना हो। किसी को बावले कुत्ते ने थोड़ी काटा जो आपसे लड़ेगा। ये इसको ट्राई कर लें। कभी कोई आते ना, मेरा बेटा मानता नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता, ये नहीं पढ़ता, वो करता है, बदतमीजी करता है। तो मैं क्या आपने सख्तियां करके देख ली ना, अब जरा नरमी करके देखें कदमों में आता है कि नहीं आता। हाँ बोल के तो अब उसको बदतमीज जब एक रख के दूंगा, इस तरह अगर आप बच्चे को समझाएंगे, इसने कहा समझना है यार। समझाने का तरीका ये आजकल है, जारिहाना अंदाज, सबके सामने बोलेंगे किसी को, इसको समझाओ बदतमीज को, माँ का एहतराम नहीं करता, बाप का अदब नहीं करता, जब देखो सामने जवाब देता है। अब आप बताइए कि यार वो कैसे सही होगा इस तरह करेंगे तो। कि मेरे बाप ने ये इतनों के सामने मेरे को डिग्रेड कर दिया, या मस्जिद के इमाम साहब के पास ले गया कि मैं इसलिए लाया हूँ कि इसको समझाएं आप। ये मेरे साथ हुआ है ना, मेरे पास कई बार ऐसा हुआ है कि लाए हैं लोग, इसको समझाओ, बहुत बदतमीजी करता है। तो फिर कभी मैं कान में बोल देता हूँ यार अब मैं कैसे समझाऊँ इसको, ये कैसे समझेगा। अब हो सकता है कि ज्यादा तंग करे कि तुमने यार मतलब हमारे वो अत्तारी होते हैं, बच्चे भी अत्तारी होते हैं, पीर साहब के सामने तुमने मेरे को मतलब नजर से गिरवा दिया, ये फिर तो और सताएगा।
तो इसलिए मतलब आप मुझे चिट्ठी लिख देते, कोई इस तरीके से बताते कि इसको ना पता चले, तो फिर आदमी मौके की मुनासबत से, अब लाइन लगी हुई है, ये लाते थे तो समझाओ, पर लाइन लगी हुई है, मैं कैसे समझाऊंगा इसको सबके सामने, ये कैसे समझेगा। एक बुजुर्ग का बड़ा प्यारा वाकया है, वो तो खैर इससे मुनासबत पूरी तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर है कि कोई बुढ़िया अपने बच्चे को या दोते पोते को लाई किसी बुजुर्ग के पास, इसको समझाइए ये गुड़ बहुत खाता है, तो उन्होंने फरमाया कि कल आना, तो कल आई, तो उसको भी प्यार से फरमाया कि बेटा गुड़ नहीं खाया करो। तो फिर वो बुढ़िया ने बोला कि आप कल ही ये बात बोल देते, सिर्फ अगर यही बोलना था कि गुड़ मत खाया करो, तो उसने फरमाया कि कल असल मैंने खुद गुड़ खाया था। तो ये कि अब बाप बदतमीजों का सरदार हो और बेटे के तमीजदार होने के ख्वाब देखे, तो ये कैसे होगा। बाप बार बार वो तमीज का मतलब खून करता हो, कत्ल करता हो, उसको झाड़ता रहता हो, ये मतलब ये बदतमीजी करता है, ये और क्या करेगा। तो इसलिए बाप का अखलाक अच्छा होगा, बाप तमीजदार होगा, माँ हुस्न अखलाक की पैकर होगी, बेटा बदतमीज नहीं बनेगा, बद अखलाक नहीं बनेगा। घर यानी पहली स्कूल, पहली तरबियत का पहला मदरसा तो माँ की गोद है। ये मदरसा ही आजकल आजमाइश वाला है, तो यूं भी शायद बच्चों के अंदर बिगाड़ बहुत पैदा हो रहा है। माओ को पता नहीं कि बच्चे की तरबियत कैसे करनी है, बाप को नहीं पता कि इसको कैसे सेट करना है, तो वो अपने हिसाब से लेके चल रहे होते हैं। और जो ड्राइविंग नहीं जानता, अब उसको गाड़ी हाथ में आ जाए, उसके बेहतरीन गाड़ी हाथ में आ जाए, करेगा क्या। तो थोड़ा बहुत मतलब अगर वो इसको स्टार्ट करना आता होगा तो ठोक देगा, और क्या। तो ड्राइविंग सीखेगा तो आएगी ना। इसी तरह तरबियत का तरीका आता होगा तो तरबियत कर पाएंगे ना, वरना तो वही होगा जो माशरे में बदकिस्मती से हो रहा है। तरबियत औलाद के ताल्लुक से तरबियत औलाद एक रिसाला है मकबूल मदीना का, छोटी सी किताब है, 100-150 सफ़े की, वो मतलब ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह करेगा तो इसमें आपको तरबियत के बेहतरीन मदनी फूल मिलेंगे इंशाअल्लाह करें। और इसी तरह वो दूसरे लोगों के साथ कि वो तंग करते हैं, तंज करते हैं, लड़ाई करते हैं, जिसका भी मैंने आपको हल बता दिया कि आप सब्र करने वाले बनेंगे, चुप रहेंगे, इनको जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो वन साइड को खामा का पागल नहीं होगा, आपको रख के दे देगा, कोई वजह होगी तभी वो रख के देगा चांटा। आप फिर बोलोगे नहीं यार तुम खुश होते हो तो एक और मार लो, अब वो दूसरा नहीं मारेगा। एक मुहावरा है, मैं इसका तजर्बा मत करना, ठोक भी दे क्या पता, ज्यादा ही घूमी भी हो तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा प्यारे बाबा जान की बारगाह में ये क्वेश्चन है, हम लोग बहुत ही ज्यादा दुआएं मांगते हैं लेकिन वो चीज हमें एज इट इज मिलती नहीं है, तो फिर बहुत से लोग वसवसों का जो है वो शिकार होते हैं। आप इस हवाले से क्या फरमाते हैं? अल्लाह अल्लाह। फजाइल दुआ जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है आसानुल बयां लिआदाब दुआ, इसका तर्जमा फजाइल दुआ मकतबतुल मदीना ने छापा है। बहुत मालूमाती किताब है दुआ के ताल्लुक से। उसमें एक बड़ी प्यारी और काबिल गौर हिकायत लिखी है, वाक़या लिखा है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बनी इसराइल 7 बरस कहत में मुब्तला रहे, यानी बारिशें नहीं हो रही थी और अनाज की एकदम तंगी हो गई, यहां तक के मुर्दों और बच्चों को खाने लगे। हमेशा पहाड़ों में निकल जाते और आजिजी और तजर्रो के साथ गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते और रोते, मगर रहमत इलाही इनके हाल पर असलन तवज्जो ना फरमाती। यहां तक कि इनके पैगंबर अलैहिस्सलाम पर वही आई, अगर तुम मेरी तरफ इस कदर चलो कि तुम्हारे घुटने घिस जाएं और तुम्हारे हाथ आसमान को लग जाएं और तुम्हारी जबानें दुआ करते करते गूंगी हो जाएं, जब भी मैं तुम में से किसी दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल ना करूं और किसी रोने वाले पर रहम न फरमाऊं,
जब तक मजलूमों को उनके हुकूक वापस ना कर दें। बस बनी इसराइल ने मजलूमों को उनके हक वापस किए, उसी दिन मींह बरसा, उसी दिन बरसात बारिश हो गई। तो जुल्म जो है ना, ये जुल्म इतनी बुरी चीज है कि वो मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने तो लिखा है कि बट्टेर आपने नाम सुना, परिंदे बट्टेरें अपने घोंसलों में मर जाती हैं जुल्म की वजह से, जिन्हें लोगों के जुल्म की वजह से ये मर जाती हैं। इतना मतलब ये जुल्म क़यामत का अंधेरा है। और आज देखो तो हर एक दूसरे पर जुल्म करने पर तुला हुआ है। अल्लाह पाक ने जुल्म करना खाली है किसी को कत्ल कर देना या जख्मी कर देना, हाथ पैर तोड़ डालने, सिर्फ ये जुल्म नहीं है। जुल्म ये भी है कि किसी को धोखा दिया, किसी की ग़ीबत की, और यहाँ तक कि मतलब किसी का कर्जा दबा लिया, इस तरह मतलब किसी को झाड़ दिया, किसी को गाली निकाली, किसी पर गुस्से से मतलब ने घूरा या तकलीफ देने वाली नजर से घूरा, ये सब जुल्म की मुख्तलिफ अक़साम है। जुल्म ये क़यामत का अंधेरा है, तो इसलिए जुल्म से बचना है। और जुल्म एक दूसरे पर हम कर रहे हैं, तो भाई भाई पर कर रहा है, माँ बेटी पर कर रही है, बहू सास पर, सास बहू से, बस मियाँ बीवी पर, ये सब एक दूसरे पर कमो बेश, मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ, जुल्म बहुत हो रहा है। तो जो खराबियाँ, जो मतलब आफतें, मुसीबतें इस वक्त हम अपने यहाँ देख रहे हैं, तो भी जो भी बाशऊर है उसको पता होता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या तकलीफें हैं। महंगाई, ये भी तो तकलीफ है। लोगों का माल महंगा कर देना, एक तो हम महंगाई की वजह से परेशान, दूसरा मजीद महंगा कर देना कि अगर 10% माल महंगा हुआ है एक्चुअली हकीकत में, तो 100% बढ़ा देना, नहीं 110 रुपए की चीज को 200 रुपए देना, है ना। तो यूं मतलब पिस रही है कौम, एक दूसरे को सब पीस रहे हैं। इलाज महंगा, दवा महंगी, जो बोलो महंगा, जहर महंगा। खुदकुशी करने के लिए शायद जहर भी नहीं मिलता होगा लोगों को, करनी नहीं चाहिए, हराम है। मैं वैसे ही समझाने के लिए, चोट करने के लिए, हर चीज महंगी, हर चीज में मिलावट, ये जहर खाए बंदा तो मरे भी नहीं, ये भी केस है इस तरह के भी। तो ये प्लस है उसके हक में कि बच गया जिंदा, तौबा की तौफीक मिलने का उसको चांस मिल गया, क्योंकि केस तो हो जाता है, पुलिस के हाथ में आ गया तो गया। तो ये कि कानूनी भी जुर्म है, और कानूनी जुर्म के साथ साथ इस्लामी कानूनी भी जुर्म है। कुरान में भी मना है अपनी जानों को इस तरह हलाक करना, खुदकुशी हराम, जहन्नम ले जाने वाला काम है। लेकिन ये कि जो खुदकुशी करे उसका जनाजा पढ़ा जाएगा और उसके लिए दुआए मगफिरत की जाएगी, इसाले सवाब भी किया जाएगा, ये ज़हन में रखिएगा। बाद लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने कहा मसला क्लियर कर दूं। ताहम ये कि जिसने ये किया ना खुदकुशी, ये बड़ा खतरनाक जुर्म किया है। जिस चीज से इसने अपने आप को मारा, सपोज करें कि उसने अपने आप को पंखे से लटका लिया, अब पंखे से लटका रहेगा। इसने अपने को करंट लगा लिया तो करंट खाता रहेगा। अब इसने गोली अपने को चला दी तो गोली खाता रहेगा। चाकू से गला काटा तो भी चाकू से कटता रहेगा। तो ये इस तरह की इसकी सजाएं हैं खुदकुशी करने वाले की। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए। जिन मुसलमानों ने खुदकुशी की, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी सज़ा ख़त्म हो जाए अगर है उस पर तो, और जो करना चाहते हैं अल्लाह करे कि वो पलट कर आ जाए। ये मुसीबत, वो मुश्किल, ठीक है, मुसीबत है, परेशानी है, बीमारी है, जो भी है, लेकिन खुदकुशी में खुद ऐसी तकलीफ है कि जिसकी इंतहा नहीं। और फिर ये मरने के बाद जो सजाएं अगर आ गई तो मरे। और खुदा न खासा खुदकुशी को हलाल समझ कर खुदकुशी की तो हमेशा के लिए जहन्नम। तो खुदकुशी बहुत खतरनाक है। तो जो भी सोच रहे हो ऐसा, तो वो इस ख्याल को झटक दें, तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं। खुदकुशी मसले का हल नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। खुदकुशी करने से जान छूटती नहीं है, जान मजीद फंसती है। तो मजीद फंसाने से अपने को बचाएं। जिसमें आप फंसे हुए ना मुश्किल में, जिसमें सवाब मिल रहा होता है मुसलमान को, तंग दस्ती, बेरोजगारी, बीमारी, जो भी है, सवाब मिल रहा है,
सवाब के मीटर को ऑफ करके जहन्नम में क्यों छलांग मारने, ऐसा ना करें। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। तो अब ये कि हम रात दिन अल्लाह पाक की नाफरमानी करें, नमाज हम ना पढ़ें, पढ़ें तो बेजमात पढ़ें, बाजमात भी पढ़ें तो सही ना पढ़ें, सीखें ही नहीं, माँ बाप का अदब ना करें, इनकी नाफरमानियां करें, माज़ अल्लाह दाढ़ी भी मुंडाएं, एक मुट्ठी से भी कटाएं, यानी कदम बाद में उठे पहले नाफरमानी हो, हम अल्लाह रसूल की कोई बात ना माने, उस पर अमल ना करें। और अब हम कहेंगे अल्लाह हमारी बात ही नहीं सुनता, हमारी बात ही नहीं मानता। नहीं, अल्लाह के नेक बंदो, आप सोचो तो सही कि कोई आपका बॉस हो या अफसर हो, आप कोई ये बोले कि काम इतनी देर में पूरा होना चाहिए, आप ना करें। ये आपको बोले कि चाय ले आओ, जल्दी लाना, गर्म गर्म होनी चाहिए, तो आप ठंडी करके आहिस्ता आहिस्ता आए और लाएं। आप बोले ये झाड़ू निकालो, तो आप झाड़ू में सुस्ती करें, इधर कचरा छोड़ दें, उधर कचरा, से बॉस सब नोट कर रहा है कि ये इताअत नहीं कर रहा, मेरी बात नहीं मान रहा, तनख्वाह बराबर ले रहा है। अब आपको कोई जरूरत पड़ेगी, आपने कहा बॉस ये काम मेरा, तो आप बताइए कि बॉस ये काम आपका कैसे करेगा? आपने तो इसको मतलब बिल्कुल तिगनी का नाच नचाया हुआ है, ये कैसे आपका काम करेगा? बल्कि जो अपने बॉस की या अपने अफसर की बातें नहीं मानता था, वो अर्ज करते हुए अपना मुद्दा का वो भी शर्माएगा कि यार मैंने इसकी कौन सी बात मानी है जो अब ये मेरी बात मानने लगा। तो मान भी लेंगे और नहीं मानेगा, वो काम नहीं करेगा, आप उससे बज्जन नहीं होंगे, यार मैं कौन सी इसके काम करता हूँ, सही तनख्वाह पूरी लेता हूँ। तो हम अल्लाह पाक की रोजी पूरी पूरी खाएं, जमा करें, बैंक बैलेंस बनाएं, ब्रांचें इधर उधर खोलें। अल्लाह ने बोला सूद नहीं, सूद लिया, रिश्वत नहीं, रिश्वत ली, कर रहे हैं ना सब, झूठ नहीं, झूठ बोला, धोखा नहीं, धोखा भी दिया, और ये माल जमा किया। अब या अल्लाह बच्चा बीमार है, या अल्लाह मेरी तबीयत खराब है, ठीक कर दे, ठीक कर दे, ठीक कर दे। अल्लाह सुनता ही नहीं है, बस ठीक होता ही नहीं, मेरा बच्चा सेहतियाब होता ही नहीं। तो ये किस मुंह से हम गिला शिकवा कर रहे हैं, हम कौन सी मानते? तो एक तो इसका इस जवाब पर गौर फरमा लीजिएगा, ठीक है ना। और यहां तक कि शेर भी है किसी का, क्या खता मुझसे ऐसी हुई है जिसके मुझको सजा मिल रही है, ये मिसरा है, किसी का है, कोई अननोन शायर का। तो अब ये कि अल्लाह के बंदे क्या खता नहीं हुई है तेरी, ये कोई बात है कि मेरी क्या खता हुई है? चोरी और सीना चोरी, ये कैसे बोल सकता है यार एक बंदा? औलिया किराम अपने आप को गुनाहगार कहकर चले गए, है ना, कि सबने आजिजियां की, और ये शायर कह रहा है कि क्या खता मुझसे ऐसी हुई है जिसके मुझको सजा मिल रही है। ये तो अल्लाह का करम है कि हम पर आसमान नहीं फट जाता, जमीन नहीं फटती कि हम इस पर धंस जाए। खुदा की कसम, इस वक्त इतने गुनाह उम्मत में फैले हुए हैं, ये अल्लाह का करम है कि हम लोग बचे हुए। तो बहरहाल एक अपना रोजी रोजगार सब हलाल हो और अल्लाह पाक की बारगाह में हम मर्ज करें, और फिर भी अगर ना मिले कुछ मांगा हुआ, इसमें भी अल्लाह पाक की मसलियत पर नजर रखें। तो हम जो चीज मांग रहे हैं अल्लाह पाक हमें नहीं अता फरमा रहा, तो ये उसका करम है कि ऐन मुमकिन है कि हमारे हक में बेहतर ना हो, इसलिए नहीं दे रही, कुरानी हुक्म है। तो इसलिए अल्लाह की रजा पर बंदा राजी रहे। एक बुजुर्ग का बड़ा प्यारा वाकया है, एक बच्चा था नाबीना, दूसरे आंख वाले थे, और ये बेचारा उनके साथ खेल रहा था, लेकिन ज़ाहिर वो नाबीना तो अपने हिसाब से खेल रहा था। तो जब देखा तो इनको बड़ा रहम आया इन पर, और इनके लिए दुआ की कि अल्लाह इसको आंख दे दे, बेचारा ये भी खेले। अब तो अल्लाह पाक ने उसको आंखें दे दी बच्चे को, अब आंखों वाला हो गया, आओ हट जाओ। अब इसने तो पानी कर उठा उठा के दूसरे बच्चों को डबोना शुरू किया, मारा मारी कर दी समझो। तो अब बुजुर्ग, ये अल्लाह तू जो करता है सही करता है, ये नाबीना ही ठीक था कि ये बीना हुआ और दूसरों के लिए मसले खड़े कर दिए। तो यूं भी बाज औक़ात नाबीन है, बल्कि बाज नाबीने देखे मैंने, अरे इनकी अगर आंखें होती तो पता नहीं क्या कर डालते, ऐसे देखे, उससे सियाने, ऐसे चालाक, बल्कि चीटिंग करते हुए भी पकड़े जाए हो नाबीने, बहुत पावरफुल। ये आंख वाले हो तो तख्ते उलट दें लोगों के।
तो ऐसों का नाबीना रहना ही मतलब उम्मत के लिए मुफीद होता है। तो अल्लाह पाक जो करता है वो बेहतर करता है, खुद इसके लिए मुफीद होता है कि अगर आंखों वाला होगा तो ज़्यादा जुल्म करेगा और लोगों को सताकर अपने नामा अमाल को बर्बाद करेगा। तो इसलिए अल्लाह की रज़ा पर अगर कोई चीज़ हमें मिल गई, हो सकता है वो चीज़ मिलना हमारे हक में बेहतर ना हो, हम मालदार हो जाएं। हम ये ख्वाहिश तो किसकी नहीं होती, लेकिन मालदार होने में अगर ये है कि अल्लाह ना करे नमाजें छूट गई, मसरूफियत तो होती है ना, माल ऐसे थोड़ी छत पे से टपकता है, भागदौड़ करनी पड़ती है, फिर टेंशन अलग। तो यूं कि हम दूर हो जाएं दीन से या तकब्बुर आ जाए, गरीबों को हकार से देखना शुरू कर दें, तो इसलिए मतलब बाज़ों के लिए गुर्बत बेहतर होती है, बाज़ों के लिए मालदारी बेहतर होती है, और ये अल्लाह की मसलहत है। तो इसलिए मतलब या फिर ये होता है कि अल्लाह पाक इसके लिए एक तो ये कि जो मांगा ये दे दिया, दूसरा ये होता है कि इसकी दुआ करने से आने वाली मुसीबतें इसकी टल जाती हैं। कि अभी यहाँ आया, दुआ में शरीक हुआ, मिसाल के तौर पे दुआ में शरीक हुआ मदनी मुज़ाकरे में, या दुआ के बाद जाऊंगा मैं, और किस्मत मुअल्लक, एक तकदीर मुअल्लक होती है कि ये इतने बजे रोड पे निकलेगा तो इसका हादसा होना है। तो अब ये कि ये दुआ में रुक गया, दुआ मांगी, हादसा होने का टाइम आ गया, लेकिन तकदीर मुअल्लक, ये एक किस्म तकदीर की, और ये अल्लाह को मालूम है कि कौन क्या करेगा, समझे। तो अब ये कि ये दुआ में रुक गया, फिर मुस्कुरा के 2-4 से मुलाकात भी कर ली इसने, इनफिरादी कोशिश भी कर ली, जल्दी नहीं भागा मिसाल के तौर पे। अब उसका टाइम जो था ना हादसे का वो गुजर गया, और उस दुआ की बरकत से बला टलने वाली कि वो मत हादसे से बच गया। अगर वो दुआ छोड़कर जाना था, इसने हाथ पैर तोड़वाना था। तो आप बोलोगे यार मैंने तो माँ की बीमारी के लिए दुआ की, यार इतने मजमे में दुआ की, बोलते कि मुसलमानों के मजमे में दुआ कबूल होती है वगैरह, नेकों के कुर्ब में दुआ कबूल होती है।